My voice is audible, no? Okay. So we'll start our next lecture. So first we will review what we did in last lecture. After long time we are starting our lecture. Now the classes will continue regularly. So in last lecture we are studying about two reactions. That is two reaction theory. Means two types of reactions are taking place in the synchronous machine. That is for salient pole machine, the air gap is non-uniform. Because of non-uniform air gap, the reluctance is not constant, reactance is not constant, it is continuously changing. Therefore, the theory was proposed, that is two reaction theory, in which what is happening in two reaction theory? The current is resolved into two components. One is along direct axis current ID and one is along quadrature axis IQ. So these two reactances are acting together. One is XD and other one is XQ. There is a lot of significance for XD and XQ because of this. This theory comes, two reaction theory. By this theory, we are analyzing the synchronous machine. The problem is that actually there is no XD and no XQ. In real world or practical condition, XD and XQ reactance is continuously changing. But we have resolved the continuously changing reactances or continuously changing air gap observed by the rotor of the salient pole machine into two components. One is component along direct axis and one along quadrature axis. In last class, we have drawn the phasor diagram also. That is very important. And with phasor diagram, we have solved the geometry of that phasor diagram for salient pole machine and calculated the angle. Phi is given, of course, delta and psi. And with this angle, you are able to solve a problem based on salient pole machine. One thing is very important. If you want to solve the problem based on salient pole machine, you know the geometry of that phasor diagram, or phasor diagram. So with the help of phasor diagram, you can solve the problems. तो आपको याद होगा कि last time हमने formula derive किया था. We have derived the formula, that is tan psi. Tan psi is equal to, आपको कंटिन्यूस पढ़ना है. tan psi is equal to, tan psi की वैल्यू क्या आई थी? It is v sin phi plus ia x cube upon v cos phi plus ia. ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर. ठीक है ना. तो फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको फिर से एक बार रिवाइज करो हम लोग, क्योंकि फेजर डायग्राम लैगिंग का अलग बनेगा, लीडिंग का अलग बनेगा. इफ यू अंडरस्टूड फेजर डायग्राम, यू कैन डिराइव दिस tan psi, और tan psi आ गया तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो. हमने लास्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, इफ यू रिमेम्बर, कि फॉर लैगिंग पावर फैक्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, लीडिंग का नहीं किया था. तो लीडिंग का भी करना है. जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे तो ये छोड़ना नहीं है आपको. We have to be very careful कि this numerical is very important. ये हमने tan psi derive किया था. Phasor diagram is very important. Phasor diagram कि अभी we are drawing phasor diagram for generator, फिर मोटर का आएगा तो मोटर में भी चेंज होगा. लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हमने डिराइव किया था, लीडिंग के लिए थोड़ा सा अलग होता है. हम आज लीडिंग के लिए ड्रॉ करेंगे. We will draw the phasor diagram of synchronous generator, or we will draw the phasor diagram of salient pole synchronous generator at leading power factor. और फिर एक बार आपका ये वैल्यूज आ गई, यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई जो निकालना है वो आपका ई निकल जाता. उसके लिए आपको साई की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. tan psi की वैल्यू आ गई मीन्स आपको ई की वैल्यू मिल जाती थी. और tan psi की वैल्यू क्यों लगती थी? टू फाइंड आईडी एंड आईक्यू. आईडी एंड आईक्यू को भी निकालना पड़ता है हमें.
IT एंड IQ का एंगल आपके पास नहीं है, ठीक है। फाई एंगल है आपके पास, हमारे पास 3 एंगल हो जाते हैं। E, इफ यू सी केयरफुली, E, ID, IQ, ये दोनों मिला के I, और यहाँ पे आपका V रहता है। दिस एंगल इज डेल्टा, दिस एंगल इज फाई, एंड डेल्टा प्लस फाई इज इक्वल टू tan साइन। तो डेल्टा निकालने के लिए आपको साइन निकालना, ID एंड IQ में आपको रिजॉल्व करना पड़ता है कंपोनेंट को। दिस इज IQ, ID एंड IA, and armature current IA is resolved into 2 components. One is along direct axis ID and IQ, sorry ID IQ, और ये इनको, और V हमारे पास ऑलरेडी है, V और IA, इसको सॉल्व करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है। इसका एक फेजर डायग्राम हम लीडिंग पावर फैक्टर का ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। आपने लैगिंग का ड्रॉ कर लिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं लीडिंग पावर फैक्टर का, फिर नेक्स्ट क्लास विल गो फॉर अदर टॉपिक्स, ठीक है। ऑफ कोर्स फॉर एनालिसिस पर्पस यू नीड दिस। थ्योरेटिकल पार्ट आपको बहुत सारी चीजें यू विल गेट इन यूट्यूब वगैरह, बट फॉर एनालिसिस पर्पस आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ये फेजर डायग्राम आना ही पड़ेगा। एट लैगिंग पावर फैक्टर आपको E निकालना है, एट लीडिंग पावर फैक्टर E निकालना है। न्यूमेरिकल हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फेजर डायग्राम की आपको जरूरत पड़ेगी। नाउ वी विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस जनरेटर, और फेजर डायग्राम ऑफ सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर एट लीडिंग पावर फैक्टर, एट लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर के लिए हम फेजर डायग्राम अभी ड्रॉ करते हैं। वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर एट लीडिंग पावर फैक्टर। तो सेलिएंट पोल मशीन में हम क्या ले लेते हैं, पहले E को हम रेफरेंस मान, E वी विल टेक एज ए रेफरेंस, जो आपको आउटपुट मिलेगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। इन केस ऑफ सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन we can resolve the current into 2 components. One is direct axis current and one is quadrature axis current, ठीक है। तो आपका V यहां कहीं होगा, ठीक है, V can be here, but I कहां जाएगा, I should be leading by an angle phi, तो I को आपको लीडिंग दिखाना पड़ेगा। तो I को मैं ऐसा दिखा रहा हूं, this is I, which is leading voltage, टर्मिनल वोल्टेज बाय एंगल फाई, ठीक है। एक्चुअली E को हमने नहीं लिया है, E डजंट हैव सिग्निफिकेंस, E तो हमारा लास्ट में आएगा, ये हमको लास्ट में निकालना। पहले हमने V और I को लिए। करंट V इज, हमने ये सॉल्व किया था ना, E इज इक्वल टू V प्लस IARA प्लस J टाइम्स IDXT प्लस J टाइम्स IQXT, ठीक है। IDXG प्लस J टाइम्स IQXT, ये चीजें आपको पूरे ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। यू हैव टू बी रिमेंबर एवरीथिंग वेरी केयरफुली। ये हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो V का लीडिंग पावर फैक्टर मींस करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एंगल फाई, ये पूरा फाई हो गया, एंड V एंड E का एंगल डेल्टा हो गया, V एंड E का एंगल डेल्टा हो, ये E है। V एंड E का एंगल हो गया डेल्टा, I एंड फाई का एंगल हो गया, अगर आप साई लोगे तो साई विल बी I एंड E का एंगल, ये अगर आपको मेजर करना है दैट विल बी फाई माइनस डेल्टा। तो हम अभी साई नहीं निकालते, अभी हम डेल्टा और IA में काम करते हैं। क्लियर है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट दे कैन आस्क द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आर ओपन टू एवरीवन। किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। वॉइस इज ऑडिबल ना, क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट, what will be your next step? What will be your next step? V हो गया, सिंक्रोनस मशीन का हमने ऑलरेडी फेजर डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं। यहाँ पे E है, यहाँ पे आपका RA रहता है ड्रॉ, XD XQ दो मटेरियल है, और आउटपुट में आपको V मिलता है। और सिंक्रोनस मशीन मोटर जनरेटेड वोल्टेज SC
ड्रॉप आई आर एक्सटेंड एक्सक्यू दो कंपोनेंट्स हैं और फिर टर्मिनल वोल्टेज V। अभी हमारे पास कंडीशन क्या है, टर्मिनल वोल्टेज इज V, करंट इज I। अब करंट के दो कंपोनेंट में आपको रिजॉल्व करने पड़ेंगे। करंट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, वन इज ID एंड अदर IA IQ। ID और IQ जो होगा वो E के, इसमें E के डायरेक्शन में होगा। IQ विल बी इन द E, so IQ will be in the direction of E and ID is in along the direction of direct axis। इसको आपको थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ेगा। IQ ठीक है, IQ is in the direction of E and ID is in the direction of perpendicular to E। तो IQ and ID आपको बनाना। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, IA is making an angle phi with B, ठीक है। फिर आपको ID and IQ बनाना, ठीक है। तो दिस इज कंडीशन ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर। कंडीशन क्या है ये, लीडिंग पावर फैक्टर। फिर अब IARA आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IARA? तो IARA देखो इसके पैरेलल जाएगा, एग्जैक्टली पैरेलल टू IA। IARA ड्रॉप जो होगा ये IARA ड्रॉप या ऐसे, IARA ड्रॉप विल गो लाइक दिस। अब क्या करना है, IARA ड्रॉप के बाद क्या करना है आपको, ड्रॉ करना है IDXD एंड IQXQ, ये दो ड्रॉप आपको लेना है। These two drops you have to take। ये दो ड्रॉप आप कैसे लोगे बताओ? अगर आपने सेलिएंट पोल का लैगिंग पावर फैक्टर का बनाया तो वैसे ही जाना है, अलग से नहीं जाना। इसके पैरेलल जाता था, आपने देखा होगा लैगिंग पावर, वैसे ही आपको एग्जैक्टली उसके पैरेलल ही जाना पड़ेगा लैगिंग पावर। तो आपको JIDXD लेना है और एक IQXQ क्या हो जाएगा, ये पूरा ये हो जाएगा, दिस विल बी IQXQ, ठीक है। एंड IDXD जनरली जैसे इसके है ना, इसके अगर आप लास्ट क्लास में आपने देखे होंगे तो इसके हम पैरेलल IDXD जाते, IQXQ जाते हैं, ठीक है। तो IQXQ ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका IDXD। दिस गिव्स E। ऑफ कोर्स लीडिंग पावर फैक्टर में जनरेटेड वोल्टेज V से कम होता है, इसको थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ेगा। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट दे कैन आस्क। IQXQ इज IDXD। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है फेजर डायग्राम ड्रॉ करना। और ओनली आप देखोगे PS भीमरा की बुक रिफर करो और BL थेरेजा की बुक तो रिफर करोगे, उसके अलावा एक देयर इज वन बुक PS भीमरा, और PS भीमरा की बुक रिफर कर सकते हो, उसमें आपको थोड़ा सा फेजर डायग्राम को और अच्छे से समझना है, ठीक है। देखो यहां तक के ठीक है IARA। इस IARA के बाद IQXQ, then you will get a E, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क, ठीक है। दिस वैल्यू विल बी IAXQ। इतने सारे एक्चुअली करंट तीन हो गए ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। देयर आर थ्री करंट्स, IA and IA has two components, ID and IQ। IDXD ड्रॉप, IQXQ ड्रॉप रहता है। ये हम ID और XQ ड्रॉप लेके गए थे, अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो IXQ ऐसा नहीं। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप इसको आगे एक्सटेंड कर दो। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप दिस लाइन को IAXQ को एक्सटेंड कर दो, उसे एक्सटेंड करके यू कैन
कनेक्ट दिस विद दिस, क्योंकि ओवरऑल मुझे ई निकालना है, ई का पोजीशन ये है, ओवरऑल मुझे क्या निकालना है, ई निकालना है, एंड द पोजीशन ऑफ ई इज दिस निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एंड पोजीशन इज दिस। इस पोजीशन में आपको ट्रेस करने के लिए आपको ऐसे आपने किया v प्लस आई आर ए प्लस जे टाइम्स आई एक्स क्यू, ऐसा भी जा सकते हैं, या जे टाइम्स एक्स क्यू प्लस जे टाइम्स आई, ई इज इक्वल टू v प्लस आई आर ए प्लस जे टाइम्स आई एक्स जी प्लस जे टाइम्स आई क्यू एक्स क्यू, जे रहेगा आपको, इससे आप पहुंच गए वहां पे। और एक तरीका है कि अगर आपके पास आई डी एक्स जी नहीं है तो आप यू कैन राइट ई इज इक्वल टू प्लस आई ए आर ए प्लस जे टाइम्स आई एक्स क्यू, इससे भी आप यहां पे, बिकॉज आई क्यू और एक्स आई डी हमारे पास नहीं है, तो आई क्यू एंड एक्स जी निकालने के लिए हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा आई, उसको रिजॉल्व करने के लिए आपके पास टोटल फाइव है एंड डेल्टा, तो फाइव माइनस डेल्टा, ये एंगल जो है हमको चाहिए साइन, साइन नहीं आएगा तब तक कि आपको आई डी एक्स नहीं मिलेगा। So overall, the purpose of drawing phasor diagram and writing equation solving geometry is to find this angle psi, tan psi निकालना। फिर एक बार tan psi निकल गया तो आपका पास आई डी एंड एक्स जी मिल गया, और आई डी एक्स जी मिल, आई डी एंड आई क्यू मिल गया, एंड आई डी एंड आई क्यू मिल गया तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व। अब ज्योमेट्री से आप फाइंड कर सकते हो, ये ज्यादा डिफिकल्ट आपको इसमें से अब tan psi निकालना है, यू कैन राइट आई क्यू एक्स क्यू, ये है आपका आई क्यू एक्स, आई क्यू एक्स क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाए, ये v है, ठीक है। तो tan psi क्या होगा बताओ, tan psi निकाले हम, tan psi निकालते देन वी विल फाइंड EF, tan psi निकालना आपको समझ रहा ना, tan psi क्यों निकाल रहे हैं हम, बिकॉज आई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए साइन फाई एंड आई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई ए कॉस, ठीक है। तो आई डी एंड आई क्यू निकालने के लिए यू नीड अ साइन, tan psi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, opposite upon adjacent, this is your opposite side O A B, tan psi is equal to क्या हो जाएगा, opposite A B, opposite upon adjacent, A B upon A B, opposite upon adjacent O B, A B की वैल्यू क्या होगी, अब ये निकालो, what will be the value of AB, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इसको कंपोनेंट को गिराओगे, V cos del V sin phi, इसकी वैल्यू मैं अगर यहां पे गिरा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, V sin phi हो जाएगा, V cos phi हो जाएगा, ये दिस वैल्यू इज sin, वो हो जाएगा V sin phi माइनस आई ए एक्स क्यू, देखो फाई एंगल कहां से कहां तक की है, V और आई ए से, फाई एंगल को अगर मैं रिजॉल्व करता हूं, फाई एंगल को मैं अगर रिजॉल्व करता हूं तो V sin phi कहां तक की जाएगी, V sin phi ये पूरा चले जाए,
ये पूरा ये डिस्टेंस इज v and this distance is v sin, ठीक है। मुझे लेना क्या है, ए बी, ए बी लेना है तो मैं तो क्या लिखूंगा, साइन फाई टोटल डिस्टेंस माइनस यहां तक के पूरा साइन फाई माइनस दिस इज आई एक्स पूरा v साइन फाई है माइनस आई एक्स के लिया तो मुझे ए बी एंड ओ बी लेना है तो क्या हो जाएगा v cos फाई v cos फाई प्लस ए बी ने आई है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो, एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन? थोड़ा सा है, tan साई पूरा इतना है और cos फाई इतना है, v cos फाई इतना होना है और v sin फाई इतना होना है। तो v sin फाई माइनस आई एक्स क्यों किया तो मुझे ए बी मिला, ओ बी के लिए क्या लेगा v cos फाई प्लस आई है, या तो मुझे ये तो एक बार tan साई मिल गया, once you got the value of tan psi you get IA, ID and IQ and ID and IQ मिल गया तो आपको E मिल जाएगा, ID and IQ मिल गया तो E मिल जाएगा। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, V cos del, यहां से यहां अगर परपेंडिकुलर गया तो क्या हो जाएगा V cos del, डेल्टा कैसे हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू फाई माइनस डेल्टा tan साई आ गया ना, साई फाई माइनस डेल्टा, तो अब क्या ले लो, E इज इक्वल टू V cos डेल्टा, इतना कंपोनेंट मिल गया माइनस आगे चला जा रहा है इसमें तो इसलिए क्या हो जाएगा V cos डेल्टा माइनस IQ आ रहे प्लस ID प्लस ID। ये बहुत केयरफुली देखिए, ये आगे चला गया था, तो V cos डेल्टा माइनस IQ आर ए हो गया, IQ आर ए ये माइनस प्लस IDXG, तो V sin फाई प्लस IDXG तो आपने ये ले लिया, IDXG ले लिया माइनस IQ आपको E मिल गया, ठीक है। ये तीन इक्वेशन आपको आंसर दे देंगे, आपने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था लास्ट टाइम में, अगर वो न्यूमेरिकल को आप लीडिंग पावर फैक्टर के लिए सॉल्व करोगे तो देन यू विल गेट अ फाइनल आंसर, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछो, इसको थोड़ा सा ऑनलाइन में डिफिकल्ट होता है, आई वीडियो इसको आप बिल्कुल केयरफुल बना के देखना। आई विल सेंड द फेजर डायग्राम फ्रॉम बुक आल्सो। पीएस भीमरा की बुक अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, पीएस भीमरा की बुक इसके बेस आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, इज इंपॉर्टेंट। फाइंड द जनरेटेड वोल्टेज एट लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर की इक्वेशन अलग है, लीडिंग थोड़ा चेंज होता है ये इक्वेशन, इसकी ज्योमेट्री आपको पता रहनी चाहिए, फेजर डायग्राम सबको बनाना आना चाहिए। Part of the phasor diagram is draw phasor diagram of synchronous generator for cylindrical pole machine, which we already drawn in the beginning. Unity power factor, leading power factor, and lagging power. This time we are drawing the phasor diagram of salient pole generator for leading power factor and lagging power. Lagging power factor का एक बार हो गया तो फिर लीडिंग में, लीडिंग का अगर एक बार बन गया निकाल सकते। तो जस्ट गो थॉरोली जाओ, अगर अभी कभी जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से हम क्लासरूम में लेक्चर ले लेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे, विल प्रोसीड फर्दर।
और दिस सिंक्रोनस मशीन। अगर ये आपके पास फार्मूले आ गए तो आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू आर अपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम और आईएएस एग्जाम ये सब में, तो आपको सब एंगल, डेल्टा एंगल, साइन, ई क्या होता है, वी क्या होता है, सब कोरिलेशन आपको पता रहना चाहिए। won't be able to solve the numericals, ठीक है। ये अभी we are in synchronous generator, synchronous motor पढ़ोगे और फिर फेजर डायग्राम और चेंज हो जाएगा, ठीक है। Anybody having any doubt? ठीक है, तो tomorrow आपके, अब now I will take lecture according to the class schedule। अगर कोई चेंज रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। एंड प्रिपेयर फॉर वन एग्जाम, हम लोग एक एग्जाम लेंगे नेक्स्ट, आई विल गिव सम टाइम, ओके। वीक में, नेक्स्ट वीक में विल टेक वन मोर एग्जाम, राइट, मे बी नेक्स्ट सैटरडे, मे बी ऑन नेक्स्ट सैटरडे आई एम गोइंग टू टेक अ क्विज एग्जाम, नॉट दिस वीक, नेक्स्ट सैटरडे। तो आप उसकी पढ़ाई करो, ठीक है। इट कवर्स एंटायर सिंक्रोनस जनरेटर, व्हाटएवर इज टॉट इन क्लास, नथिंग न्यू चीज नहीं, जो क्लास में कवर हुई है वही। नाउ यू टेल मी, डू यू हैव एनी डाउट, क्यूरीज, वी कैन डिस्कस। आपको कोई डाउट क्यूरीज है तो बताइए। फेजर डायग्राम को बहुत केयरफुली बना, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन ड्राइंग फेजर डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ करने में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ई का जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ ई गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ आईडी एंड आई, वहां प्रॉब्लम आती है आपकी। जैसे वी हैव ड्रॉन द फेजर डायग्राम फॉर यूनिटी पावर फैक्टर, सॉरी आप यूनिटी का बनाना लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर में क्या लेते हैं हम, V एंड देन IA। ये आपको V एंड IA इज गिवन, ऑलवेज V एंड IA एंड phi इज गिवन इन न्यूमेरिकल। तो अब आपको IA को रिजॉल्व करना है IQ में एंड IA को रिजॉल्व करना है ID में। ये टोटल एंगल आपका हो जाता है psi एंड दिस एंगल इज डेल्टा। Delta is called as a load angle, angle between voltage, terminal voltage and induced EMF. E is induced EMF and V is terminal voltage. लास्ट टाइम हमने जो लैगिंग पावर फैक्टर का अपने फेजर डायग्राम बनाए थे वो आप लोगों ने बिल्कुल केयरफुली देखा था। लैगिंग पावर फैक्टर का फेजर डायग्राम, दिस इज फेजर डायग्राम फॉर लैगिंग पावर। IA कहाँ होगा, इधर। IEXQ ऐसा नहीं जाएगा, IDXT ऐसा जाएगा, J टाइम्स ID, दिस विल बी J टाइम्स IQ, दिस इज IQ एंड दिस गिव्स यू, दिस इज फेजर डायग्राम फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। में E आपका छोटा होता है, टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन इंड्यूस्ड ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। फिर उसकी ज्योमेट्री से, इसकी ज्योमेट्री को आप फॉलो कर लोगे तो ज्योमेट्री को यू कैन फॉलो, देन यू कैन ड्रॉ द, राइट द इक्वेशन फॉर tan psi, tan phi, tan psi निकाल लोगे, psi निकाल लोगे तो IA IQ। मेन प्रॉब्लम है ID एंड IQ निकालने के लिए आपको वैल्यू चाहिए, psi इज इक्वल टू डेल्टा होता है लैगिंग में, ये तो फिर आपको ID एंड IQ, ID इज इक्वल टू ये sin phi, IQ इज इक्वल टू I। ज्योमेट्री को समझो, अगर ज्योमेट्री समझ में आ गई तो ठीक है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है यू कैन कम टू कॉलेज एंड वी कैन डिस्कस, ठीक है। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट, कंफ्यूजन है फेजर डायग्राम ड्रॉ करने में, आप कॉलेज में आ जाओ, हम करते हैं।
Here I am stopping here. If anybody having any doubt, you can ask, right? All the lectures will be according to schedule. Okay? Anybody having any doubt? I will upload this lecture in YouTube. Okay.